کچھ مینو مرندہ شوق میں سی از قلم آسیہ مرزا۔ رات تک وہ سب منگورہ پہنچے تھے۔ منگورہ میں گھومنے پھرنے کے علاوہ یہاں کے بازار عورتوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گئے تھے۔ خرم چڑ کر رہ جاتا، کیا مصیبت ہے تم لوگوں کے ساتھ، جہاں جاتی ہو چپک کر رہ جاتی ہو۔ یہ ساری چیزیں کوئی نئی تو نہیں ہیں، تم مت آیا کرو نا ہمارے ساتھ، ہم تو اسی طرح کریں گے۔ روبی بھابھی جیولی پسند کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، تاکہ اجنبی جگہ آپ لوگ گم ہو جائیں اور بیچارے تلال چاچو ڈھونڈنے میں خوار ہوتے رہیں۔ خرم نے یہ کہتے ہوئے روشانہ کو شرارت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ تلال کو ڈھونڈنے میں اتنی تکلیف بہرحال نہیں ہوگی جتنی تمہیں اس وقت یہاں کھڑے ہونے میں ہو رہی ہے۔ اوہو، خوش فہمی دیکھیے ذرا، خرم نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ آپ کا کیا خیال ہے، آپ ادھر ادھر ہو گئیں تو چاچو آپ کو ڈھونڈنے نکل پڑیں گے کیا؟ تو نہ نکلیں، میرے میاں کو اللہ سلامت رکھے، وہ یہ کام بخوشی کر لیں گے۔ اللہ رے، خرم نے استہزائیہ انداز میں ایک ٹھنڈی سانس کھینچی، پھر دونوں ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا، وہ تو کہیں گے خس کم جہاں پاک۔ خرم کے بچے، روبی بھابھی نے پلٹ کر اسے مارنے کو پرس اٹھایا تو وہ ہنستا ہوا دوسری طرف نکل گیا جہاں عادل اور مجتبیٰ آئس کریم کھا رہے تھے۔ لالا رخ مصطفیٰ خان کی موجودگی کے باعث ان سب کے ساتھ اب کہیں آنے جانے سے کترانے لگی تھی، مگر روبی اور روشانہ اسے زبردستی گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ وہ تنہائی میں روشانہ سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر روشانہ اسے ایسا کوئی موقع جان کر فراہم نہیں کر رہی تھی۔ وہ زیادہ تر مہوش اور نازک کے ساتھ چپکی رہتی یا پھر روبی بھابھی کے ساتھ نکل جاتی۔ لالا رخ ہی نہ جان پائی کہ وہ دانستہ ایسا کر رہی ہے۔ روشانہ کے دل کی عجیب حالت تھی۔ کبھی کبھی کوئی خوشی اس طرح ملتی ہے کہ خوش ہونے کا احساس جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، جیسے مچلتی ہوئی لہریں ساحل پر سر پٹک پٹک کر ریت میں جذب ہو جائیں۔ دراصل کچھ خواب بڑے رنگین اور خوشنما ہوتے ہیں، مگر ان کی تعبیریں بڑی پھیکی اور بے رونق ہوتی ہیں۔ وہ بجھ گئی تھی، اس کے دل کی شوریدہ لہر کہیں ریت میں جذب ہو کر ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اس کے رنگین جذبوں کی تعبیر اس کے ہاتھ آئی تو اسے لگا اس کے رنگ بڑے پھیکے اور ماند ہیں۔ ویسے تو جو خوابوں میں دکھائی دیتے تھے ویسے نہیں تھے۔ وہ تلال سے فقط یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ہاتھ میں ایسا پھیکا اور بے رنگ پھول کیوں دینا چاہتا ہے، اس کے عوض وہ کیا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں یہ اس کی چھٹی حس کا گمان تھا یا محض بدگمانی کہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ جذبے دل کے سیپ سے نکل کر آنکھوں کی سطح پر ضرور ظاہر ہوتے، مثل مہتاب ابھر کر اس کی بے یقینی کے اس اندھیرے کو ضرور کاٹ ڈالتے۔ محبت میں جہاں چاہے جانے کا احساس مسرت انگیز ہوتا ہے، وہیں اس شفاف آئینے میں ناگواری، بے مہری، بے یقینی اور بیگانگی کا ہلکا سا چھینٹا بھی فوراً دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور ہر سچی خالص چیز کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، تھوڑا سا ناخالص احساس بھی پوری طرح محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ تو دھڑکنوں کے ایک دوسرے میں تحلیل ہونے کا عمل ہوتا ہے، یہ تو ایک دوسرے کے اندر اگنے کا عمل ہے۔ جب تک آپ دوسرے کے دل میں از خود نہ اگیں، آپ کی جڑیں اس کے اندر نہیں ہوں گی، تو یہ محبت بڑی کمزور اور کسی غرض پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک کج ادائی، ایک غافل دھڑکن سے محبت کے درخت کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ یہ بات روشانہ اسد اس شخص کو بتانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ چاہنے کا سفر چاہے جانے سے کہیں زیادہ کٹھن اور اذیت آمیز ہوتا ہے۔ عورت محبت کرنے میں اتنا نہیں تھکتی جتنا چاہے جانے کے سفر کی اذیت ناکیاں اسے تھکا دیتی ہیں۔ منگورہ سے ان سب کی واپسی کا پروگرام اچانک بن گیا۔ جلال بھائی کا فون آیا تھا کہ روشانہ کے والد اسد خان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس خبر نے سبھی کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ جادب بھائی نے فوراً ہی ٹکٹوں کا انتظام کیا۔ پلوشا موبائل پر امی سے بات کرتے ہوئے خوب روئی۔ امی نے اسے تسلیاں دی اور لالا کو بتا دیا کہ اب حالت خطرے سے باہر ہے، دائیں بازو کی ہڈی اتر گئی ہے اور دوسرے چھوٹے موٹے زخم اور خراشیں ہیں۔ دونوں بہنوں کو تو کسی پل قرار نہیں تھا، ان کا دل چاہ رہا تھا
पर लगाते ही उड़े और वहां चली जाएं। मुस्तफा खान ने मंगूरा से इन सबको रुखसत किया। एक अजीब सी उदासी उसकी रूह पर मोहित हो गई थी। उसकी खुशनुमा आंखों की रोशनी बुझी बुझी थी और जाने क्यों लाला की नजरें इससे जाते वक्त तक कुतराती रहीं। उसने सोचा, वापसी का सफर हमेशा उजाड़ वीरान स्टेशन की तरह क्यों होता है, जिस पर कोई रेल अरसे से आकर ठहरी ही न हो और आई भी हो तो पलक झपकते ही गुजर गई हो। मैं न पास उसको बुला सका, न दिल की बात सुना सका। वो हंसी हंसी में ही चल दिया कि मैं हाथ तक न हिला सका। न है दुश्मनी किसी दिन से, अब न है दोस्ती किसी रात से। है बचा ही क्या जो वो ले गया मुझे छीन कर मेरी रात से। ये अजीब ही मुकाम था, अजब सा कि मैं खुद को भी ना बचा सका, ना मैं उसको बुला सका, ना मैं दिल की बात सुना सका। ये भी ठीक है वो चला गया मुझे बंद रास्ते पर छोड़कर। ये भी ठीक है ना आएगा कभी बुत अना का वो तोड़कर। वो जुदा भी कैसे हुआ कि मैं कोई रस्म तक न निभा सका, न मैं उसको बुला सका, न दिल की बात सुना सका। वो सब मुल्तान पहुंचे तो हिना भी आई हुई थी। रफिया बेगम और सादिया फुप्पो ने भी इस्लामाबाद जाने का इरादा किया हुआ था। बस रोशाना और परवशा के आने की मुंतजिर थी। तुम भी साथ चलती नाली? सादिया फुप्पो लाला रुख से बोली। नहीं भाभी, अभी नहीं, हमजा का स्कूल खुल गया है और फिर मैं जरूर जाऊंगी असद भाई की तरफ, मगर अम्मा को लेकर। वो कहकर मां ने शायद अंदाज में मुस्कुराने लगी। रोशाना के दिल में तीर सा उतर गया। वो सर झुकाकर लब काटने लगी। वो अच्छी तरह आगाह थी इस बात से लाला का क्या मतलब है। उसे एकदम बहुत सा रोना आ रहा था। उसका ख्याल था वो अपने बाप के लिए रो रही थी और हिना उसे थामकर अपने साथ ले गई। भाभी, आप असद भाई के कानों में ये बात डाल दीजिएगा कि हमारा इरादा तलाल के लिए रोशाना को मांगने का है। वो सादिया भाभी के जरा और करीब होकर सरगोशाना अंदाज में बोली। क्या? सादिया भाभी इस गैर मुतवक्का जुमले पर उछल कर रह गई। फिर कदरे हैरानी से लाला का मुस्कुराता चेहरा तका और वो जो तलाल ने, ये खुद उसकी भी ख्वाहिश है। लाला ये कहकर एकदम जोर से हंसी। है ना खुशी की खबर? फिर कदर शरारत आमेज अंदाज में सादिया भाभी का मुत्तहिया चेहरा देखते हुए बोली, मौका अच्छा है, लगे हाथों खुर्रम और परवशा की बात भी कर दीजिए। लाली बदतमीज लड़की, ये सब क्या है? तुम मुझे बौखलाए दे रही हो। साफ साफ बताओ, क्या सवात में सारे प्रोग्राम सेट करके आए हो तुम लोग? सादिया भाभी हकीकतन बौखलाई हुई दिखाई देने लगी। फिर लाला को घूरते हुए कुशन उसे दे मारा। बताओ, ये परवशा और खुर्रम का क्या मामला है? कमाल है, बेटा वो आपका है और पूछ मुझसे रही हैं। क्या उस गधे ने परवशा से कुछ ऐसी वैसी बात कर दी है? उन्हें एकदम फिक्र पड़ गई। ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं कर दी? मैं तो मारी जाऊंगी। हाय, पराई अमानत है ये बच्चे मेरे पास। अगर कुछ, खैर अब ऐसी भी बात नहीं है। मेरा भतीजा अच्छे खानदान का चश्मो चराग है, कोई फजूल हरकत तो करने से रहा। लाला अपनी हंसी समेटते हुए कदरे संजीदगी से बोली। फिर मुख्तसरन उन्हें बताने लगी। ये बात सादिया फुप्पो के लिए खैर आमेज थी, ताहम उन्हें खुशी हुई कि खुर्रम ने गलत फैसला गलत जगह नहीं किया। रोशाना न सही, परविशा भी उनके भाई की बेटी थी और उन्हें बेहद अजीज थी। वैसे ये बताओ, ये तलाल के दिल का कुफल किस तरह टूटा? इस हिसाब से तो सवाद बड़ा ही मुबारक साबित हुआ। हाँ, मैं खुद हैरान हूँ कि कहाँ शादी के नाम पर भागता था और कहाँ बिल्कुल अचानक उसने ये फैसला कर लिया। ना सिर्फ ये बल्कि मुझे कहा भी कि मैं ये काम जल्द अज जल्द करूँ। चलो, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? सादिया भाभी ने तमात भरी सांस खींची। दूसरे रोज वो इस्लामाबाद जा रही थी अपनी दादी और सादिया फुप्पो के हमरा। सारी लड़कियां उन्हें सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी। ये हजूम किस खुशी में तैयार है भाई? खुर्रम उन्हें देखकर चकरा गया। ये खुशी में नहीं, गम में तैयार है। हुस्ना आपा खिलखिलाई। भाई, आखिर 2 लड़कियां जा रही हैं और हम यूं ही सूखे मुंह घर से अलविदा तो नहीं कह सकते ना। उन्होंने गोया अपने और सबके जाने की वजाहत फरमाई। तो क्या गीला मुंह करके अलविदा कहेंगी या कोर्स के साथ अलविदाई नगमा गाएंगी वहां जाकर? फिलहाल तो ये शेड्यूल में नहीं है,
मगर आइडिया भी बुरा नहीं है, ये जज्बात पर मुनहसर है। हिना इत्मीनान से बोली, तुम तो चुपकी ही बैठी रहो, आफाक की तुम्हारी नकेल हमेशा गलत वक्तों पे छोड़ने की आदत है। खुर्रम ने उसे घुरका, तुम्हें बड़ी जलन होती है जब भी लड़कियां कहीं जाने का इरादा करती हैं तो। हिना ने आंखें दिखाई, इरादा करना तो खैर है, मगर जब इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाती हैं तो हकीकतन मुझे खफकान होने लगता है। खुर्रम ने गाड़ी की चाबी उसके आगे उछालते हुए उसे छेड़ा, तुम इसे दफा करो हिना, इसे तो यूं भी हर वक्त खफकान ही रहता है। नादिश ने हिना को एक तरफ खींच लिया। लाली, खुर्रम तो बिल्कुल नहीं बदला, मेरा तो ख्याल था इसे बहन की जुदाई ने थोड़ा बहुत अक्ल बख्श दी होगी। वो खुर्रम को घूरती हुई लाला के साथ दूसरे सोफे पर बैठ गई। क्यों, तुम जाते जाते अक्ल बांट गई थी क्या? हाँ तो और क्या, तुम्हें ही तो देकर गई थी सारी। हिना चमक कर वहीं से बोली, आह, तभी खाली घोपड़ी होकर रह गई है तुम्हारी। उसने तासुब से हिना को देखा। खुर्रम के बच्चे, उसने झींक कर अपनी चप्पल निकाली, मगर जलाल भाई और राफिया बेगम को दाखिल होते देखकर चप्पल दोबारा पैर में डाल ली। तुम मत उलझो इससे, ये बदतमीज यूं ही तंग करता रहेगा। हुस्ना आपा ने हिना को समझाया और खुर्रम हंसता हुआ मुसलसल उसे छेड़ रहा था। जो सुबह ख्वाब हुआ शिव को पास कितना था, बिछड़ के उससे मगर दिल उदास कितना था। वो जिसको बज़्म में मेहमान भी नहीं समझा, किसे बताएं वो खलवत में खास कितना था। वो कमरे में कितनी देर टहलता रहा और हैरान होता रहा कि वो खुद को तस्कीर न होने वाला ख्याल करता आ रहा था। किस बुरी तरह से शिकस्त से दोचार हुआ था। अजीब अजियत आमिर लज्जत थी इस शिकस्त के एतराफ में भी। उसे तो अब एहसास हुआ था कि तलब भी प्यासी की तरह होती है, उमड़ती है तो आदमी को अंदर से बेरूह करने लगती है। वो लॉन में निकल आया। अचानक ही पूरा घर वीरान और उजाड़ महसूस होने लगा था। ऐसा लगा सारी रौनक, सारी रोशनियां वो अपने साथ समेट कर ले गई हो। हालांकि न वो रौनक का रसिया था, न रंगीनियों का फिदाई, न रोशाना असद ऐसी महफिल आरा और रंगीन समा बांधने वाली लड़की थी, मगर फिर भी जैसे सारी रंगीनी नगमगी उसी के दम से थी। जाते वक्त का मंजर उसकी आंखों की पुतलियों पर साकित सा होकर रह गया था। वो मुस्तबराना अंदाज में कितनी बार इसके कमरे तक आई थी, शायद कुछ कहना चाहती थी। उसकी खुशनुमा आंखों की सतह पर इस्तराब, उदासी, शिकवा, रंजिश, बेकली क्या कुछ नहीं था, मगर वो जानकर भी नजरें चुरा गया। वो इससे जो कहना चाहती थी, जो सवालात इसके दिल में मचल रहे थे और जिन्हें वो जुबान देना चाहती थी, इनसे वो अच्छी तरह आगाह था। मगर कभी कभी बहुत सी बातें वादे होकर भी मुबहम हो जाती हैं। आदमी खामोशी के खैमे में पनाह लेकर आफियत महसूस करता है, और वो भी खामोश था तो मुसलहत के तहत। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। वो अजीब इस्तराबी अंदाज में हंस रहा था। भाभी की तरफ से हौसला अफजा बात सुनते ही लाला रुख अम्मा को लिए इस्लामाबाद आ पहुंची। सादिया भाभी उसकी इस बेकरारी पर हंसती, फिर उसे बताने लगी, मैंने असद भाई से बात की और खुद अम्मी ने भी तलाल की इतनी तारीफें की हैं कि असद भाई चारों शाने चत हो गए हैं। क्या कहा उन्होंने? अभी तो सोचने का वक्त लिया है, मगर अच्छा हुआ तुम और खाला जान आ गए हो। बस अब इकरार लेकर ही जाना। और हाँ, खुर्रम की भी मैंने बात की है, वो कह रहे हैं साल भर इंतजार कर लो, उसका सेकंड ईयर मुकम्मल हो जाए फिर बाकायदा रस्म करेंगे। अलबत्ता मेरी तरफ से हाँ ही समझो, मगर अभी उसका जिक्र बच्चों से ना करना। ये कहते हुए सादिया भाभी का चेहरा चांद की तरह दमक रहा था। हाँ, खुर्रम से तो बिल्कुल जिक्र मत कीजिएगा, बहुत शरीर है वो, उठना बैठना हराम कर देगा उस बेचारी का। लाला रुख खुर्रम की शरारती मिजाज का तस्वुर कर कर हंस पड़ी, फिर उठकर किचन में चली आई जहाँ रोशाना मौजूद थी। लाली अब आई हैं तो आप हफ्ता भर तो रुकिएगा कम से कम, अम्मी बता रही थी कल ही आपका जाने का प्रोग्राम है। रोशाना बरना आहिस्ता करके उसकी तरफ चली आई। हाँ, अभी तो जाना जरूरी है, मैं हमजा को भी इसीलिए साथ नहीं लाई। तुम फिक्र मत करो, अब तो आना जाना होता ही रहेगा और बहुत जल्द दोबारा आऊंगी मंगनी की रस्म करने। वो उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली तो वो सर झुका गई।
पापा ने हाँ कर दी है क्या? पलविशा इधर ही चली आई थी। लाला रूख की बात पर मुसर्रत से पूछने लगी, भाई हाँ क्यों नहीं करेंगे, आखिर मेरे भाई में कमी ही क्या है? कमी तो खैर नहीं है, कुछ ज्यादती ही है। पलविशा हंसी और फिर सर खजुआते हुए बोली, वैसे एक चीज की कमी तो है। उसने दबी दबी मुस्कुराहट के साथ रोशाना को देखा तो उसने भी बेअख्तियार उसकी तरफ देखा, मगर पलविशा की आंखों में थरकती शरारत आमेज मुस्कुराहट की रोशनी ने उसको पलकें झुकाने पर मजबूर कर दिया। वो हंसने के मामले में बेहद कंजूस हैं और रोमांटक तो बिल्कुल नहीं लगते। लाला ने बेसाख्ता हंसते हुए एक हाथ पलविशा को जड़ दिया। नादान हसीना, एक शरीफ आदमी हर किसी से रुमाल लड़ाने से रहा, अब ये तुम कुछ अरसे बाद रोशाना से ही पूछना कि वो रोमांटिक है या नहीं। ये कहकर उसने माने खेस तबस्सुम से रोशाना को देखा। पलविशा को सादिया पुप्पो ने आवाज दी तो वो वहां से भाग ली। बहुत फजूल बकती है ये विशी भी। रोशाना ने छिपे छिपे लाला रुख की तरफ देखा, फिर कप ट्रे में रखने लगी। उसके रुखसार अजीब तरह से हद से तप रहे थे। मोहब्बत में औरत मौसम बहार की तरह दिखाई देने लगती है, हर अंग से हुस्न झलकता महसूस होता है। लाला रुख को रोशाना मौसम बहार का ही एक शगुफ्ता गुलाब दिखाई दे रही थी। उसने बड़े बेइख्तियाराना अंदाज में उसकी नाजुक तरशीदा कमर के गिर्द बाजू हाइल कर दिए और झुककर उसकी मुअत्तल लट को उसके चेहरे से हटाते हुए उसका तपता हुआ रुखसार चूम लिया। आई एम सो हैप्पी रोशी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तलाल कभी मुझे इस तरह बेपाया मुसरत बख्श देगा। मैंने इतना अच्छा और बरवक्त फैसला आज तक नहीं किया। लाली, भला ऐसा क्या है मुझ में? मैं तो बेहद आम सी लड़की हूँ। लाला रुख की इतनी मोहब्बत और अकीदत पर रोशाना का दिल गुदाज होने लगा। उसने लाला रुख को तशक्कुर आमेज नजरों से देखा। उसकी इस बेपाया चाहत से उसे अपना दामन तंग महसूस होने लगा था। हर इंसान ही दुनिया वालों के सामने आम सा होता है रोशी डियर, मगर वो किसी न किसी दूसरे इंसान के लिए खास होता है। वो उसका हाथ थाम कर गर्मजोशी से दबाते हुए बोली, जिस तरह तलाल हो सकता है कितनों की नजर में आम हो, मगर तुम्हारी नजर में खास है ना? इसी तरह तुम भी मेरी नजर में बहुत खास हो और अब तो तलाल के लिए भी खासुल खास हो गई हो। ये कहकर उसने हंसते हुए उसकी मुअत्तल लट को खींचा। रोशाना की पलकें शर्म से झुक गईं। दरअसल मोहब्बत जज्बा ही ऐसा है, बहुत खूबसूरत, अहम और खास बना देता है हर किसी की निगाह में किसी को। जिस तरह रब को अपने तमाम बंदे बगैर तफरीक के प्यारे हैं, जिस तरह एक मुसव्विर को अपनी तमाम तस्वीरें और एक राइटर को अपनी तमाम तहरीरें, एक माँ को अपनी तमाम औलाद अजीज होती है, इसीलिए कि वो सब जज्बा मोहब्बत से अपनी अपनी तख्लीकात को देखते हैं। ये मोहब्बत का जज्बा ही मुजस्सम होकर किसी को बहुत खास बना देता है, इतना कि वो उसे जिंदगी से भी प्यारा लगने लगता है। और रोशाना असद तलाल की निगाहों में कितनी खास थी, इसका इदराक उसे पूरी तरह होने लगा था। उसे लग रहा था कि तलाल उसे जिंदगी से भी प्यारा हो गया है। अजीब सी ख्वाहिशात सर उठा रही थी, हर खुशी शेयर करने की, चाहने और चाहे जाने की थी। वो आंखें बंद करके इस खूबसूरत बंधन को महसूस करके खुश होना चाहती थी, अपने आप पर रश्क करना चाहती थी। अजीब बेखुदी सी थी जो उस पर लाला रुख के जाने के बाद भी कितने दिन तक तारी रही। जाते जाते लाला रुख उंगली से रिंग उतार कर उसकी उंगली में डाल गई थी और उसे लग रहा था उसका दिल खींचकर उस उंगली में आकर धड़कने लगा हो। कोई मौसम हो दिल में है तुम्हारी याद का मौसम, के बदला ही नहीं जाना तुम्हारे बाद का मौसम। तुम्हें तो आजमा कर देख लूं कैसे बदलता है तुम्हारे मुस्कुराने से दिले नाशाद का मौसम। रुतों का कायदा है वक्त पर वही आती जाती हैं, हमारे शहर में क्यों रुक गया फरियाद का मौसम। मोरे ने उसके कमरे में झांका तो वो वॉशरूम में था। पानी गिरने की आवाज के साथ साथ उसकी हल्की गुनगुनाहट भी सुनाई दे रही थी। वो वापस हो ली। कहीं से इस हसीन आवाज की खुशबू पुकारेगी, कहीं से उस हसीन आवाज की खुशबू पुकारेगी तो उसके साथ बदलेगा दिले बर्बाद का मौसम। मोरे ने दूसरी बार झांका तो वो आईने के सामने खड़ा गीले बाल तौलिए से रगड़ रहा था। तलाल 2 बार फोन कर चुका है, उन्होंने इतला दी। ओह अच्छा, आप मुझे मोबाइल अंदर ही दे देती,
वो तौलिया एक तरफ डालकर ब्रश उठाकर बालों में हाथ फेरने लगा। फिर एक तरफ रखकर पलटा, कोई मैसेज दिया है? नहीं, मैसेज तो नहीं दिया। कहीं जा रहे हो तुम? मोरे उसे पैरों में लेदर की स्याह चप्पलें डालते देखकर पूछने लगी। जी, फतेह मोहम्मद खान और जुबैर आए हैं कराची से, उनसे मीटिंग है। आका जान ने कहा है मैं मिल लूं उनसे। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं और शहबाज भी पेशावर से आया नहीं। सप्लाई का काम भी रुका हुआ है। जाने क्या मसला है, यही मालूम करना है। उसने मेज से गाड़ी की चाबी के साथ मोबाइल भी उठाया और रुक कर मोरे को देखा। आप कुछ कहना चाहती हैं? मोरे ने उसकी जानिब पलट कर देखा। हाँ, मगर तुम्हारे पास वक्त कहाँ है मेरी बात सुनने के लिए? वो एक गहरी सांस खींच कर रह गई और वो उनके मासूमाना शिकवे पर मुस्कुरा कर रह गया। क्या बातें कही है, मैं हमतन गोश हूँ। आपकी बात नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? प्यारी माँ। हाँ, जैसे बड़े फरमाबरदार हो मेरे। उन्होंने आंखें दिखाई, मगर दूसरे ही पल उसके मुस्कुराते चेहरे को तकते हुए किसी ख्याल से उसके दिल पर अजीब सा रंज बिखर गया। दिल गिरफ्तार सा होने लगा। फिर चौंक गई। मुस्तफा खान के हाथ में मौजूद मोबाइल की बीप हो रही थी। तलाल का ही होगा, तुम पहले उससे बात कर लो, वो जल्दी से बोली और कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ तलाल ही था। उसकी आवाज सुनते ही उलट पड़ा। कितने दिनों का इकट्ठा नहा रहे थे, गुस्ल हो गया क्या? हाँ, गुस्ल ना हुआ, जान गुस्ल हो गया। उसने जवाबन एक ठंडी सांस भरी तो तलाल ने खासा जानदार कहका लगाया। तो गमों को धो रहे थे, कितने गम बहे? वो पुरमुदा अंदाज में हंसा। अरे कहाँ, इस तरह पानी से गम धुल जाते तो दुनिया के आधे मसाइल न हल हो जाते। ये गम तो रोग बन जाते हैं, खाल की तरह जिस्म से लिपट कर रह जाते हैं। वो अजीब आजादगी से बोला, मगर दूसरे ही पल संभल कर बोला, देखो ये इस तरह की नमक पाशी ना किया करो मेरे जख्मों पर। ये बताओ इतने चहक क्यों रहे हो? खैरियत तो है? फोन पर फोन किए जा रहे हो मुझे, क्या लॉटरी निकल आई है या? खैर, चहक दहक तो छोड़ो। वो झिम कर जल्दी से बोला, अलबत्ता एक खबर दरअसल तुम्हारे लिए है, जिसे सुनकर तुम्हें यकीनन मुझसे हमदर्दी हो जाएगी। क्या बात है? ये तुम्हें हमदर्दियां समेटने का कब से शौक हो गया? क्या करूं, अब हकीकतन लायक हमदर्दी हो गया हूँ। उसने एक ठंडी सांस खींची। खुदा खैर करे, कोई केस तो नहीं बिगड़ गया तुम्हारा? किसी को गलत ऑपरेशन से अजल के सुपुर्द तो नहीं कर दिया? बात यहाँ तक होती तो खैर होती। वो बेसाख्ता हंसा तो मुस्तफा खान महफूज होकर हंसने लगा। अब वक्त भी चुको, मुझे तुमसे हमदर्दी करने की जल्दी हो रही है। मुझे पाबा जंजीर कर दिया गया है, क्या कहते हैं वो मजीद लक़वी मायनों में, मजबूर, कैदी, पागल वगैरह वगैरह। अब इससे ज्यादा मुझे माकूल उर्दू नहीं आती। उसकी बात सुनकर मुस्तफा खान को हैरत के साथ मुसरत हुई। उसने बेसाख्तापन से कहका लगाया, जबरदस्त खबर है ये, किस बदनसीब के हाथ में नकेल दी गई है तुम्हारी। ऐसे ही बेढंगे बंदे को काबू करने के लिए किसको आजमाइश की भट्टी में उतारा गया है। मुझे हकीकतन उससे हमदर्दी हो रही है। मुस्तफा खान ने मसनूई तफक्कुर से सांस खींची। कहीं उस गरीब का नाम रोशाना असद तो नहीं? वो मुसलसल हंस भी रहा था। बहुत फजूल बोलने लगी हो तैफी, वो चिढ़ गया। अगर यही नाम है तो फिर मेरी सारी हमदर्दियां उसी के नाम है। वो उसकी झुंझुलाहट से हंस उठा रहा था। इस खबर ने उसके अंदर खुशगवारियत सी भर दी थी। चलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जी भर के उसके नाम की हमदर्दियां लिखवाते रहो, बल्कि टोकरे भर भर के उसे भिजवाते भी रहो। मेरी तरफ से इजाजत है, मगर अब पूरी बात तो सुन लो। अगले हफ्ते मेरे निकाह की तकरीब है, फौरन पहुंचो, मगर अकेले आने की जरूरत नहीं, मोरे और आका जान को भी साथ ले आना। उसने मजीद बताया, जिस पर मुस्तफा खान की हंसी को ब्रेक लग गए, जो उसकी हैरत का इजहार थे। व्हाट अ सरप्राइज तलाल, ये तुम कोई ज्यादा ही पास नहीं जा रहे? कहाँ तो ये बहुत जरूरी था। वो बात काट कर आहिस्ता से बोला, फिर एक गहरी सांस खींच कर सर को खफीफ सा झटका दिया। अदमे खलूस के बंदों में एक खामी है, सितम ज़रीफ बड़े जल्दबाज होते हैं। वो हल्के से बुड़बुड़ाया तो मुस्तफा खान ने दिल पर हाथ रखकर एक पुरसोज जख्मी आहनुमा सांस खींची। वो महफूज होकर हल्के से हंसा। ये बताओ, आ रहे हो या नहीं, या यूं ही फजूल बकवास करते रहोगे? क्यों नहीं, सर के बल आऊंगा। वो जल्दी से बोला,
चलो मुल्तान में भी लोगों को नई चीज देखने को मिलेगी, उसने छेड़ा तो जवाबन मुस्तफा खान खिलखिलाकर हंसा और अपने मोबाइल को घूरने लगा। बड़े चहक रहे हो, ये दरअसल एक मासूम लड़की को कैद करने की खुशी का नशा है। मगर मोहतरम, एक चिड़िया को पिंजरे में बंद कर लेने से फातह आलम नहीं बन गए तुम, वो जलकर बोला। मगर उधर तलाल ने हंसते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। तलाल की मंगनी के साथ निकाह का सुनकर लड़कियों ने खूब मुंह बसूरा था। इतनी जल्दी तो कुछ तैयारी नहीं हो सकती, सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। माय डियर सिस्टर्स, हिना ने नादिश की बसूरती सूरत को पुचकारा। तुम्हें इसलिए फिक्र नहीं कि जहेज और बड़ी के ढेरों सारे कपड़े हैं तुम्हारे। नादिश ने उसे आंखें दिखाई तो वो खिलखिला पड़ी। अगर चाहो तो मैं इनमें से तुम्हें भी दान कर सकती हूँ इसी खुशी में। बस रहने दो, अपने कपड़े अपने पास रखो। यूं भी मुझे कपड़ों की नहीं, उन अरमानों की फिक्र है जो कब से निकलने को बेचैन थे। हाय, क्या क्या सोचा था चाचू की शादी में, ये करूंगी वो करूंगी, महीना भर पहले तो खूब हंगामा मचाएंगे। मगर नादिश कुशन सर के नीचे डालकर लेट गई। ये और वो तो तुम अब भी कर सकते हो, तुम पर कतई कोई पाबंदी नहीं है। ये और वो से क्या मुराद है तुम्हारी, जरा हमें भी तो पता चले, ताकि हम भी तुम्हारे साथ ये और वो में शरीक हो सके। नादिश उस पर झुकी हंसने लगी। उसने जलकर उसे दूर धकेला। वही जो तुम्हारी शादी में किया था। मेरी शादी में तो तुमने बहुत अच्छा डांस किया था, और वो डांस तो तुम अब भी कर सकती हो, क्यों महविश? हिना ने महविश की तरफ देखकर आंख दबाई, फिर दोनों हंसने लगी। हिना की बच्ची, नादिश ने कुशन सर के नीचे से निकाल कर उसे दे मरा, फिर उठकर कुशन गोद में दबाकर बैठ गई। तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा हमें ये सब इतनी जल्दी करना पड़ रहा है? उसने हिना को घूरा। हरगिज नहीं। हिना ने सर को नफी में हिलाया और फिर सोफे की पुश से टेक लगाकर एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं और खोए खोए लहजे में बोली, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी है कि चाचू दुल्हा बन रहे हैं और अचानक से शादी कर रहे हैं। इस बेपाया मुसरत के बाद कोई अरमान, कोई ख्वाहिश जैसे रही ही नहीं है। हाँ, ये खुशी तो खैर मुझे भी बहुत है। नादिश उसकी बात पर तायद में सर हिलाने लगी। तो क्यों ना इस खुशी में एक जबरदस्त गाना हो जाए। हिना एकदम अपने उस कैफियत से निकलकर तरंग में बोली, मैं अभी कैसे लगा देती हूँ। महविश भी अपनी जगह से उठी, मगर हिना ने उसे रोक दिया। नहीं, कैसेट नहीं, हम खुद गाएंगे। ना ना सिस्टर, ये गजब मत करना, जलजला आ जाएगा, ये घर धड़ाम से हम सब पर आ गिरेगा। आदिल और खुर्रम लिविंग रूम में दाखिल हुए। हिना के जुमले पर खुर्रम ने कराह कर कहा तो उन दोनों को देखकर लड़कियों का मुंह बन गया। तुम्हें अभी टपकना जरूरी था, रंग में भंग डालने को। नादिश ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। देखें आदिल, इसे कहते हैं बदज़ौक़ लोग, जो ऐसे जाने महफिल किस्म के लोगों से जेलिस होते हैं। खुर्रम ने तुरहम भरी नजरों से नादिश को देखा। और क्या, हम तो इस महफिल में रंग भरने आए हैं। आदिल ने यह कहकर तपाई खींची और सोफे पर बैठकर उस पर उंगलियां मारने लगा। चलो तालियां बजाओ, आज हम वो समा बांधेंगे कि लोग अश अश करने लगेंगे। ऐसे ही अश अश करेंगे? हिना इस्तेज़ाइया हंसी। अच्छा, ऐसा है तो टप्पा गाकर दिखाओ। महविश उन दोनों को गोया चैलेंज करने वाली नजरों से देखते हुए बोली, टप्पा? दोनों ने बेइख्तियार एक दूसरे की तरफ देखा। जी टप्पा, ये टप्पा क्या होता है? खुर्रम ने महविश को घूरा। बचपन में हम टप्पे टोई का एक खेल खेला करते थे, आदिल ने याद करते हुए कहा। बस बस, खुल गई तुम्हारी कलाई। बड़े आए बाज़ौक़ और जाने महफिल किस्म के लोग समा बांधेंगे। ये टप्पा का मतलब होता है पता नहीं। नादिश ने दिल की भड़ास निकाली और इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसने लगी। बात यह है नादान हसीनाओं के, हम दरअसल टप्पों वप्पों से निकलकर कुछ आला किस्म की गायकी पर जा पहुंचे हैं, जहां तुम लोगों की पहुंच नहीं है। तुम लोग अभी टप्पो डब्बों में ही उलझी हो। चलो आदिल, आज इन्हें हम अपनी आवाज का जादू दिखाएं। खुर्रम ने उन सब पर एक तायराना निगाह डाली। इरशाद इरशाद। आदिल ने हाथ उठाकर हिलाया, फिर तपाई पर हाथ मारते हुए सुर निकालने लगा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंसिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। खुर्रम की आवाज ने हकीकतन समा ही बांध दिया था। लड़कियां कुछ मारूफ सी होकर बैठ गईं। इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। तलाल ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो खुर्रम की खूबसूरत आवाज किसी कमान से निकले तीर की तरह उसके दिल में ठक से लगने लगी। वो वहीं खड़ा होकर
इस गजल को सुनने लगा। कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर, जंगल तेरे पर्वत तेरे बस्ती तेरी सहरा तेरा, हम और रस्म बंदगी आशुफ्तगी आफातगी, ऐसा है क्या क्या तेरा ए हुस्न बेपरवाह तेरा, कुछ नहीं कहा ये चांद है कुछ नहीं कहा चेहरा तेरा। उसे लगा उसके दिल पर कोई मुजरब मार रहा है, कोई खुशकुन मौसीकी दिल के साथ से निकलती जा रही है मगर वहां एक इस्तलाल रूह को अपनी लपेट में ले रहा था। अजीब से एहसास होने लगे, दिल का शोर और गजल के बोल हम आहंग होने लगे। उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी